Hello everyone, welcome to the course of Computer Network. In this video, we will study about HDLC protocol. So क्या होता है HDLC protocol? The full form of HDLC protocol is High Level Data Link Control Protocol, and it is the protocol that is used at the data link layer. तो क्या था previously we have Synchronous Data Link Control Protocol, that is also called as SDLC, that was developed by IBM. And later it is standardized as HDLC, that is High Level Data Link Control Protocol. And who standardized this? ISO. Okay, so HDLC अभी इसका नाम चलता है. High Level Data Link Control Protocol is a bit oriented protocol. Means हम लोग जितनी भी फंक्शनैलिटी देखेंगे वो होगी bit oriented. And it can be used for point-to-point communication as well as multi-point links. As we have seen, there are two types of line configuration, point-to-point and multi-point. Point-to-point में क्या होता है, दो डिवाइस आपस में एक डेडिकेटेड लाइन से एक डेडिकेटेड पाथ से कनेक्ट होते हैं, डेडिकेटेड ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारी स्टार टोपोलॉजी हो गई. और दूसरा होता है मल्टी-पॉइंट लिंक्स, इन विच अ चैनल इज शेयर्ड by different devices like in bus topology. तो ये दोनों जगह यूज होता है. Most of the concept defined in this protocol is the basis for the other practical protocols such as point-to-point protocol और Ethernet protocol. So friends, basically जो HDLC protocol है ये हमारा theoretical protocol है that is used to understand the functionality, and how we are going to implement these functionalities we will see in the point-to-point protocol and other protocols that are practically in use today. Okay, so what are the configuration and transfer modes? किस तरीके से हम लोग डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन होगा लाइक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पे और आपका मल्टी पॉइंट प्रोटोकॉल पे. तो HDLC provides two common transfer modes. So there are two types of transfer modes that can be used with different configurations. So first one is called as normal response mode. इसको NRM भी बोलते हैं. क्या होता है ये normal response mode? इसमें क्या होता है, the spatial configuration is unbalanced. मतलब क्या होगा, जो इसके अंदर क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, या मास्टर स्लेव भी बोल सकते हैं. मतलब जो डिवाइसेस रहेंगे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के नहीं भी हो सकते. वन प्राइमरी स्टेशन एंड मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन. सो देयर विल बी वन प्राइमरी स्टेशन एंड मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन. सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस. अब प्राइमरी स्टेशन सेंड कमांड्स, तो प्राइमरी स्टेशन का क्या काम रहेगा, टू सेंड कमांड्स, एंड सेकेंडरी स्टेशन का क्या काम रहेगा, रिस्पॉन्ड करना. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमांड्स मैसेजेस, दैट इज कमांड एंड रिस्पॉन्ड. जो प्राइमरी रहेगा वो ओनली कमांड एग्जीक्यूट करेगा और जो सेकेंडरी स्टेशन रहेंगे वो उस कमांड का रिस्पॉन्स देंगे. ओके, सो इट इज, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन. द NRM क्या है, NRM नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड इज यूज्ड फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स. देखते हैं कैसे यूज होता है. यहाँ पे एक डायग्राम है. Here in the diagram, there is a primary station and there is a secondary station. As we know, primary station will only give command and secondary station का क्या टास्क रहेगा, रिस्पॉन्स करेगा. तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी स्टेशन और दूसरा सेकेंडरी स्टेशन एक का डेडिकेटेड पाथ से कनेक्ट है. तो इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट टू पॉइंट. तो इस कॉन्फ़िगरेशन में प्राइमरी स्टेशन कमांड देगा और सेकेंडरी स्टेशन रिस्पॉन्स करेगा. On the other hand, we have multi-point communication. As we know, multi-point communication में क्या होता है कि multiple devices एक चैनल को शेयर करते हैं. तो इस केस में देखिए यहाँ प्राइमरी स्टेशन है और यहाँ पे मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन है. तो इस केस में क्या होगा, ये जब कमांड भेजेगा तो मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन चैनल ओनली. सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड. ओके, next configuration we have is asynchronous balanced mode. It is also called as ABM. Okay,
So the configuration is balanced. As LRM, there was configuration was unbalanced. Here the configuration is balanced. मतलब क्या हो जाएगा? The link is point to point and each station can function as primary and secondary station. So there are no distinction between प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन. जो आपकी डिवाइसेस रहेगी एक्ट करेगी एज अ पीयर और सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक कमांड ही देगा दूसरा रिस्पॉन्स ही देगा. यहाँ पे दोनों पॉसिबल है. दिस इज द कॉमन पोर्ट टुडे और यही आजकल हम लोग यूज करते हैं. लुक एट द डायग्राम. There is a primary station or secondary station. That's why it is here. It is written as combined. It will also act as a primary station and secondary station. तो क्या हो गया? ये कमांड एंड रिस्पॉन्स सेंड करेगा और ये भी कमांड और रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं. तो समझ में आ गया. यहाँ पे दो टाइप के हमारे ट्रांसफर मोड्स है. एक क्या हो गया? नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड और दूसरा हो गया असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड. तो ये बातें ध्यान में रखिए. नेक्स्ट वी है फ्रेमिंग. जैसे कि हम लोग डेटा लिंक लेयर पे, तो डेटा लिंक लेयर का पीडीयू क्या है? फ्रेम है. तो यहाँ पे हम लोग फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे. और फ्रेम क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. जो हम लोगों ने असिंक्रोनस ट्रांस बैलेंस मोड देगा या नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड देगा, ये किस तरीके से फंक्शन करेगा. तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट फ्रेम्स है. तो प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी नेसेसरी to support all the option possible in the modes and configuration just described. HDLC defines three types of frames. तो HDLC पे कितने टाइप्स के फ्रेम्स रहेंगे? तीन टाइप्स के. फर्स्ट फ्रेम इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन फ्रेम और इसको हम लोग आई फ्रेम भी बोलते हैं. ओके. सो क्या होता है आई फ्रेम? आई फ्रेम आर यूज्ड टू डेटा लिंक यूजर डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू यूजर डेटा. लाइक पिगी बैकिंग हो गया जिसके अंदर आपका डेटा और एक्नॉलेज दोनों साथ में होते हैं. तो यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? यूजर डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे दोनों रहेगी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन फ्रेम. सेकंड इज सुपरवाइजरी फ्रेम. इट इज कॉल्ड एज ऑल्सो एस फ्रेम. इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी? ओनली टू ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इंफॉर्मेशन. सुपरवाइजरी फ्रेम में सिर्फ कंट्रोल इंफॉर्मेशन रहेगी. इंफॉर्मेशन फ्रेम में डेटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन दोनों रहेगा. और तीसरा भी है अननंबर्ड फ्रेम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यू फ्रेम एंड यू फ्रेम्स आर रिजर्व फॉर सिस्टम मैनेजमेंट. सो ये सिस्टम मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी टास्क रहेगा दैट कैन बी हैंडल्ड वाया यू फ्रेम. सो लेट्स सी एग्जांपल किस तरीके से होता है ये डायग्राम में. सो दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट. हियर वी हैव फ्लैग, देन एड्रेस एंड कंट्रोल फील्ड. इसको हम लोग हेडर भी बोलते हैं. ठीक है. एंड यूजर इंफॉर्मेशन अगर ये आई फ्रेम में है तो एल फ्रेम चेक सिग्नल एफसीएस एंड फ्लैग. फ्लैग किस लिए यूज होता है आगे के इसमें बता दो मैं डिटेल में कि फ्लैग क्या होता है? स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम. कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम का स्टार्ट है और एंड है? तो ये आई फ्रेम हो गया. एस फ्रेम में हम लोगों ने देखा था सिर्फ ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इंफॉर्मेशन रहती है. तो यहाँ पे देखिए यूजर इंफॉर्मेशन नहीं है. तो यहाँ पे फ्लैग हो गया, एड्रेस हो गया, कंट्रोल हो गया, एफसीएस हो गया एंड फ्लैग हो गया. सो दिस इज द एस फ्रेम एंड द थर्ड वन इज द यू फ्रेम. सो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फील्ड मिलेगी. ठीक है. ये ध्यान में रखना. ए फ्लैग, देन इन द हेडर वी हैव एड्रेस एंड कंट्रोल, यूजर इंफॉर्मेशन, फ्रेम चेक सीक्वेंस एंड फ्लैग. सो दिस आर द थ्री फ्रेम्स. ओके. Let's discuss fields in the frame in detail. So what was the first field which we have seen in the frame? That was flag field. क्या होता है flag field? ये बताता है कि ये start और end of the frame है. So this field contains synchronization pattern. कौन सा पैटर्न रहेगा? 0 followed by 6 1 and 0. अगर जब भी आपके डेटा में ये ऑकर होगा तो ये आपका फर्स्ट टाइम ऑकर होगा तो ये स्टार्ट फ्रेम हो जाएगा. और उसके बाद जब 0 फॉलोड बाय 6 1 एंड 0 ऑकर होगा तो दैट विल बी योर एंड फ्रेम. इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर फ्रेम का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, which identifies both the beginning and the ending of a frame. Friends,
हमें डेटा लिंक लेयर में फ्रेम का स्टार्ट एंड एंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, सो दैट रिसीवर कैन आइडेंटिफाई कि ये फ्रेम कौन सा है, इसके बाद कौन सा फ्रेम आने वाला है, एक्सेट्रा. The second field is address field. Obviously, there will be the address is required for the transmission. So this field contains the address of the secondary station. अगर प्राइमरी स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है तो उसके लिए बाकी जो रहेगा सेकेंडरी स्टेशन, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन पे मल्टीपल स्टेशन है तो कौन से स्टेशन पे डेटा सेंड करना है. तो जैसे कि हम लोगों ने कमांड मोड में देखा था कि एक जो सेंडर है जो कि आपका मास्टर है वो सिर्फ सेंड करेगा और जो सेकेंडरी है वो क्या करेगा, सिर्फ रिस्पॉन्स देगा. तो इफ अ प्राइमरी स्टेशन क्रिएटेड द फ्रेम इट कंटेन्स अ टू एड्रेस. किस किस को ये फ्रेम जाने वाला है, तो मतलब अगर मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन है तो उनको पास उनके एड्रेसेस रहेंगे या उनमें से किसी के पास सेंड करना है तो उसका एड्रेस रहेगा. If a secondary station creates the frame, it contains the from address. सेकेंडरी स्टेशन क्या बताएगा कि मैं कहा ये फ्रेम कहां से आ रहा है, क्योंकि देयर इज ओनली वन मास्टर एंड और वन दैट इज प्राइमरी स्टेशन एंड मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन. तो मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन में से किसके पास से डेटा आ रहा है वो फ्रेम में रहेगा, और ये क्या हो गया आपका प्राइमरी स्टेशन, ये सेकेंडरी स्टेशन. सो ये इसके पास से आ रहा है कि इसके पास से आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ फ्रॉम एड्रेस. ओके. द एड्रेस फील्ड कैन बी 1 बाइट और सेवरल बाइट्स लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द नेटवर्क. जिस तरीके का नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस के ऊपर एड्रेस फील्ड के साइज डिपेंड करता है. नेक्स्ट फील्ड वी हैव इज कंट्रोल फील्ड. कंट्रोल फील्ड में जो आपके पास रहेगा, द कंट्रोल फील्ड इज 1 और 2 बाइट्स यूज्ड फॉर फ्लो एंड एरर कंट्रोल. एज इट्स नेम सेड इट इज अ कंट्रोल फील्ड. और क्या कंट्रोल करेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा और एरर कंट्रोल करेगा. द टाइप ऑफ फ्रेम इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रोल फील्ड, वेदर इट इज अ एस फ्रेम, आई फ्रेम और यू फ्रेम. ये कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल फील्ड. वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, अगर आपके आई फ्रेम के अंदर अगर कंट्रोल फील्ड के अंदर फर्स्ट बिट 0 है तो दैट विल बिलोंग टू आई फ्रेम. अगर फर्स्ट 2 बिट अगर 1 0 है दैट विल बिलोंग टू एस फ्रेम. एंड इफ फर्स्ट 2 बिट्स आर इज 1 तो दैट विल बिलोंग टू यू फ्रेम. So based on the control field, we can identify which type of frame it is, whether it is an information frame, supervisory frame or unnumbered frame. Okay. Next field is FCS, frame check sequence. ये जो एरर कंट्रोल के लिए यूज करते हैं. तो द फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS is the SDLC error detection field. It is used to detect error and it contain either 2 or 4 byte CRC. तो ध्यान में रखिए कि फ्रेम चेक सीक्वेंस is the error detection field and it contains 2 or 4 byte CRC. ओके, समझ में आ गया फ्रेम क्या होता है और कितने टाइप के फ्रेम्स होते हैं और हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइप ऑफ फ्रेम. ओके, दैट्स इट फॉर द SDLC. थैंक यू.